निकल म्यूचुअल लिखा, सेल्फ इंडक्टेंस तो नहीं लिखा अभी, so you need self inductance. Self inductance. म्यूचुअल में हमने कहा था कि whenever current through one coil changes, EMF is induced in neighboring coil. And self inductance is जिसमें current या कुछ change करता है उसी में अगर EMF induce हो. So you can read self inductance. Self inductance या self induction लिखो. Self induction. It is the phenomenon. It is the phenomenon. Generation of induced EMF in a coil. It is the phenomenon of generation of induced EMF in a coil due to change in flux of the coil itself. Due to change in flux of the coil itself. The EMF induced is called. The EMF induced is called self-induced EMF or back EMF. Back EMF because it's opposing the cause. The EMF induced is self-induced EMF or back EMF, and its direction is always such. And its direction is always such that it will oppose the cause which produces it. It will oppose the cause which produces it. Mathematically, flux through coil किस पे डिपेंड करेगा? और मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा? करंट पे. So we can say flux through the coil is directly proportional to current. ज़्यादा करंट फ्लो करेगी तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा फ्लक्स. तो phi proportional to I. And constant of proportionality is called self-inductance या coefficient of self-induction. So you can write mathematically. The flux through a coil is, mathematically flux through coil is directly proportional to current in the coil phi proportional to I or phi is equal to Li. L is constant of proportionality. L is constant of proportionality called. L is constant of proportionality called self-inductance or coefficient of self-induction. Self-inductance or coefficient of self-induction. According to Faraday's law, EMF induced कितनी हो जाएगी? माइनस एल दिया है मेरी. तो फिर L को कैसे डिफाइन कर सकते हो? कल म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन किया तो उसमें हमने कहा था म्यूचुअल इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू EMF induced in secondary coil whenever there is unit rate of change of current in primary. कि प्राइमरी में अगर करंट चेंज करेगा तो जो सेकेंडरी में EMF इंड्यूस होगी दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस. इस केस में self inductance is numerically equal to EMF induced in a coil due to unit rate of change of current in the coil itself. कि जिसमें करंट चेंज कर दिया उसी में जो EMF इंड्यूस होगा दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस. So you can write this. Self inductance is numerically equal to
self-inductance is numerically equal to EMF induced in the coil. Self-inductance is numerically equal to EMF induced in the coil due to unit rate of change of current in the coil itself, due to unit rate of change of current in the coil itself. यूनिट्स क्या हो जाएंगे, सेम जो म्यूचुअल इंडक्टेंस के थे, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, और हेनरी। हेनरी को इसमें कैसे डिफाइन करोगे, तो हेनरी को डिफाइन कैसे करें? सेल्फ इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ unit rate of change of current in a coil induces an EMF of 1 volt in the coil itself. उसमें से प्राइमरी सेकेंडरी वर्ड यूज करने, इसमें एक ही कॉइल है, यहाँ तक लिख लो तो लिख लेते हैं, बिकॉज बोर्ड में पूछते हैं हेनरी की डेफिनेशन और बहुत बारी पूछते हैं, बिकॉज एक सेट में दे देते हैं डिफाइन हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस, दूसरे में सेल्फ इंडक्टेंस। Self-inductance of coil is said to be 1 Henry. Self-inductance of coil is said to be 1 Henry. Unit rate of change of current. If unit rate of change of current in the coil induces an EMF of 1 volt in the coil itself. Induces an EMF of 1 volt in the coil itself. तो कोएक्सियल सोलेनॉइड में म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था? म्यू नॉट NSNP by L into AS। तो अब अगर सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस निकालनी है, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, इसका तो सिंपल डायग्राम है, एक ही कॉइल है ना इसमें, तो गैल्वेनिक का करंट मेजर करनी है तो लगा सकते हो, इसमें तो हमने सिर्फ प्राइमरी कॉइल ही ली है, उसके कारण करंट में भी करिए, उसी कारण इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगी। सेकंड वे, consider a solenoid having n turns, capital N. Consider a solenoid having n turns, length L, and cross-sectional area A. We assume length of solenoid to be. We assume length of solenoid to be very large. We assume length of solenoid to be very large as compared to the radius of coil. The magnetic flux through coil having n turns is
बिकॉज हमने लेंथ को लार्ज लिया तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? यूनिट एन इनवर्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये वैल्यू अगर इधर पुट कर दें इसमें वेरिएबल क्या है? फ्लक्स भी चेंज कर रहा था, चेंज इन करंट, तो अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ a general formula is to compare that L comes out to be, उसमें से NSMP का इसमें n स्क्वायर आ जाएगा। अगर कोई मीडियम होगा तो म्यू नॉट इनटू म्यू वन, पूछो। दोनों भी पूछ सकते हैं। एल निकालना है तो सिंपल, मतलब कुछ नया मेथड नहीं आएगा। आपने EMI के बहुत सारे क्वेश्चन में फ्लक्स निकाला, तो फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट इज L, बिकॉज़ फाई इज इक्वल टू L है। तो अगर मेरे को फ्लक्स पता है, L बताना है तो I से डिवाइड कर दो बस। बाकी कंसेप्ट सेम है। डायमैग्नेटिक है तो म्यू1 लेस देन 1, पैरा में ग्रेटर देन 1, फेरो में वेरी मच ग्रेटर देन 1। अब हमने एक फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक में ड्राइव किया था, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर है Q स्क्वायर बाय 2C। ड्राइव कैसे किया था? मेथड एनर्जी स्टोर्ड Q स्क्वायर बाय 2C कैसे आएगी? एनर्जी स्टोर्ड Q स्क्वायर बाय 2C कैसे ड्राइव की थी? मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो टेस्ट भी दे दिया हमने स्कूल में भी। डेरिवेशन कैसे की थी? छुट्टियां चल रही हैं, थोड़ा एक आधा घंटा बढ़ा दो पढ़ाई का, सुबह ज्यादा देर तक सोने की जगह। सुबह तो काफी लोगों की क्लास भी होती है, सो जिनकी नहीं होती वो भी टाइम पे उठ जाया करो। हमने ड्राइव किया था, हमने कहा था पहले इनिशियली मान लिया कि कैपेसिटर की प्लेट्स पे कोई चार्ज नहीं है, फिर किसी इंस्टेंट पे मैंने चार्ज दिया था Q, तो उस चार्ज एक प्लेट पे Q एक पे -Q, तो उसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस आ गया था Q/C। तो हमने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस Q/C है, इसका मतलब क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का? वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज। तो अगर मैं dq चार्ज मूव करूंगा तो वर्क डन इज vdq, और उसकी इंटीग्रेशन कीजिए कि चार्ज को अगर 0 से Q0 तक बढ़ाना है तो कितना वर्क डन हो जाएगा। अब इसमें आप लॉजिकली सोचो थोड़ा सा, अगर इंडक्टर में करंट नहीं है, पहले जीरो करंट है, मैंने एक सोर्स लगाया कोई भी जिसके कारण इंडक्टर में करंट बढ़नी शुरू हो गई। अगर करंट बढ़ेगी तो जो EMF इंड्यूस्ड होगी वो उसको बढ़ने देगी या रोकेगी? रोकेगी, ट्राई टू अपोज ग्रोथ ऑफ करंट।
Now when it tries to growth of current और फिर भी करंट बढ़ रही है, मतलब some work has to be done. किसी इंस्टेंट पे अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है di/dt, तो पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ अक्रॉस टू एंड्स ऑफ इंडक्टर क्या होगा? L di/dt. बोर्ड पे लिखा हुआ अभी तो फॉर्मूला, EMF is L di/dt. इसका मतलब when we say induced EMF is L di/dt, the EMF which is opposing the growth पॉजिटिव चार्ज अपने आप कहाँ जाता है? हायर से लोअर पोटेंशियल, लोअर से हायर, हायर से लोअर, तो ये अपोज कर रहा है, मतलब लोअर से हायर लेके जाना है हमने, तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. अगर पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड्स के क्रॉस ही है, इसका मतलब 1 कूलम के चार्ज को उस इंडक्टर से क्रॉस लेके जाना है, तो वर्क डन इज E. अगर dq चार्ज को लेके जाना है तो edq. अगर अब हम इसको मैथमेटिकली समझें, हमने कहा हमारे पास एक इंडक्टर है, उसके क्रॉस चार्ज को मूव करना है, तो वर्क डन इज and dq is idt, because I को हम यही लिखते थे. dq/dt ये कैंसिल. मेरे को इसका फिजिकली मतलब बताना क्या है. मैंने इसे dw is equals to Li दिया. What does it physically mean? ये कौन सा वर्क डन है? di इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन करंट. इसका मतलब ये है कि अगर करंट पहले आई थी, उसको बढ़ा के I प्लस di करना है, तो आपको इतना वर्क डन करना पड़ेगा. There is work done to increase current from I to I plus di. टोटल वर्क डन 0 से I0 तक बढ़ाने का. इंटीग्रेट IDI की इंटीग्रेशन I²/2 लिमिट्स पुट कर देंगे तो हाफ Li0². कैपेसिटर में एनर्जी कहाँ स्टोर थी? कैपेसिटर प्लेट के बीच में कहाँ? इन इलेक्ट्रिक फील्ड. इस केस में आएगा एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल, तो इसलिए ये मैग्नेटिक एनर्जी. उसमें जो वर्क डन किया था दैट गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज प्लेट्स को चार्ज किया जब हमने, तो उसके कारण दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया. तो इसे एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. इसमें इनिशियली कोई करंट नहीं थी, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था. जब हमने करंट को 0 से I0 तक बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया. तो इसमें हम कहेंगे जो हमने वर्क डन किया करंट को बढ़ाने में, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड. और सेम फॉर्मूला बन गया. इसको हम कई बार ये भी बोल देते हैं कि इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया L. इनर्शिया क्या होता था? inertia is ability to resist change. जैसे मेरे पास एक साइकिल है, उसको धक्का मार के उसकी वेलोसिटी को बढ़ाना है, तो वर्क डन इज लेस बिकॉज inertia for cycle is less. बट अगर ट्रक को धक्का मारना है तो वर्क डन इज मोर बिकॉज inertia for truck is more. और हमने कहा था कि मास बेसिकली रिप्रेजेंट्स द inertia, कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा. इसमें वो रोल इंडक्टर प्ले कर रहा है. जितनी ज्यादा सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होगी L की, उतनी ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो जाएगी, बिकॉज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज L di/dt. di/dt तो फिक्स्ड है कॉइल के अंदर. तो अगर सेल्फ इंडक्टेंस को बढ़ाएंगे तो मतलब जो ईएमएफ अपोज करती है वो बढ़ गई. वो बढ़ गई मतलब करंट को बढ़ाना मुश्किल हो गया. तो क्या कर रहा है? ये बेसिकली करंट की ग्रोथ को अपोज कर रहा है. मास क्या कर रहा था? मास चेंज इन स्पीड को अपोज कर रहा था.
जब उसकी वेलोसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो मास उसे अपोज कर रहा है, जितना ज्यादा मास है उतना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसको हम इसलिए बोलते थे कि L plays same role as is played by mass in kinematics। टोटल वर्क डन हमने निकाला तो दैट कम्स आउट टू बी, करंट को 0 से I0 तक बढ़ाया, assumption क्या ली, हमने assumption ली कि इस कॉइल की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बिकॉज अदरवाइज करंट फ्लो करेगी, जो आप वर्क डन करोगे, a part of that work done will also get converted into heat, I square R। तो हम ये ले रहे हैं कि कोई हीट जनरेट नहीं होगी, तो हम कॉइल की रेजिस्टेंस को 0 मान रहे हैं। सेकेंड, मैग्नेटिक एनर्जी, it is the energy stored, it is the energy stored, it is the energy stored in magnetic field of, it is the energy stored in magnetic field of a solenoid, it is the energy stored in magnetic field of solenoid when the circuit is complete, circuit with coil is completed, the current begins to grow, an inductor will oppose, an inductor will oppose the growth of current, inductor will oppose the growth of current, the induced EMF which opposes the change in current is given by LdI by dt, therefore work done to move, therefore work done to move charge dq across this, work done to move charge dq across this inductor is लास्ट स्टेप क्या लिखेंगे इसके बाद, if we assume there is no self resistance and heat energy losses are not there, this work done will be stored in the form of magnetic energy। यहाँ तक लिख लो, फिर दिखाता हूँ। Increase current from 0 to I0,
म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आ जाएगी। दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे। वे बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन जाते हैं। आप सोचो, आपने एक और कॉइल रख दी, उसमें इंड्यूस करंट है जो वेरिएबल है, तो वो इंड्यूस करंट पहले वाले में फिर म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट कर देगी, फिर इसमें करंट वेरी करेगी तो उसमें फिर चेंज हो जाएगी। तो वो इतने डिटेल में पूछते नहीं इसलिए हो। एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि अगर मेरे पास एक मैग्नेट और एक कॉइल है और मैग्नेट कॉइल के पास आ रही है तो कॉइल उसको अपोज कर रही है, तो अगर डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल हाफ हो गया तो फोर्स कितनी बढ़ जाएगी? फोर्स कितनी बढ़ जाएगी? पास आने से फोर्स बढ़ेगी, जितनी पास लेके आओगे उतना ज्यादा फ्लक्स हो जाएगा। क्या आंसर आएगा? डिस्टेंस अगर हाफ रह गया तो डबल कर लो, हाफ कर लो। डबल करोगे तो उतनी कम हो जाएगी, हाफ करेंगे तो उतनी बढ़ जाएगी। कॉइल को दूर लेके जाओ या पास लेके जाओ, फोर्स चेंज होनी है। फोर डायमेंशन प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगी? फोर्स और डिस्टेंस में। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर डिस्टेंस हाफ करोगे फोर्स विल इंक्रीज टू 56 टाइम्स, और डिस्टेंस डबल करोगे तो फोर्स डिक्रीजेस टू 56 टाइम्स। F is proportional to 1 upon x raised to power 8। इनवर्स स्क्वायर नहीं, x raised to power 8 कर सकते हो फॉर्मूला ट्राई। अगर मेरे को दो कॉइल में और मैग्नेट में फोर्स निकालनी है तो अब मैग्नेट को पास लेके आए, फ्लक्स चेंज किया, कॉइल का फ्लक्स चेंज किया तो ईएमएफ इंड्यूस हुई, ईएमएफ इंड्यूस हुई तो कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगी, कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट फ्लो की तो कॉइल में अगर करंट फ्लो करे तो इट एक्ट्स एज डाइपोल। दैट मींस एक डाइपोल दूसरे डाइपोल के पास जा रहा है, तो दो डाइपोल जब एक दूसरे के पास आते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था? ये तो बोर्ड पे लिखा था फॉर्मूला, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू डाइपोल्स। इसके बाद करते हैं, क्वेश्चन पहले लिख लो ये थ्योरी, ठीक है? राइट, ये क्वेश्चन ही कर लेते हैं, ये एडवांस में आया था और एमसीक्यूज में। अब देखना पूरा बोर्ड भर जाएगा करने में, और शायद ही इंडिया में किसी का ठीक हुआ हो। तो ऐसा क्वेश्चन जब वो पहली बार ही देते जनरली गलत ही होता है सबका, बिकॉज उन्होंने पावर्स दी थी 1/x स्क्वायर, 1/x raised to power 4, 1/x और 1/x raised to power 8। तो बच्चों को लगा 1/x raised to power 8 तो पक्का ही गलत हो गई, तो तुक्का भी मारना तो 4 पे या 2 पे मारते हैं, तो आंसर x raised to power 8 आ रहा था। Second rate, if the coil has zero self resistance, if the coil has zero self resistance, we can neglect. If the coil has zero self resistance, we can neglect the energy loss, heat energy losses. We can neglect the heat energy losses and the work done in increasing the current in a coil will be stored in the form of
its potential energy, that is U is equals to capital U, half Li naught square. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हमने डेरिवेशन की थी, इसके बाद एक और डेरिवेशन की थी, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया था और फॉर्मूला क्या आया था? एनर्जी डेंसिटी और उसका फॉर्मूला क्या होती है? आपकी छुट्टियां होंगी ना, अभी जब खत्म होंगी, जैसे 20 से 28 या जो भी छुट्टियां होंगी, 28 तक कर रहे हैं सारे, 29 को या 28 को भी रख सकते हैं, 28 को संडे है क्योंकि 2 आवर्स का टेस्ट, पूरी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म। क्योंकि आप पीछे का भूलते जा रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंसेप्ट, तो छुट्टियां अच्छे से बीत जाएंगे फिर। सो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पूरी पढ़नी है, मतलब प्रदीप का पूरा एक वॉल्यूम हो जाएगा, 2 वॉल्यूम है तो पूरा एक वॉल्यूम पढ़ना है आपने। और बोर्ड एग्जाम में अराउंड 40 मार्क्स का पेपर आता है, इसमें से 40 से भी ज्यादा की याद होता है कई बार, 70 में से, तो इसलिए फायदा रहेगा, छुट्टियों का फायदा उठाओ। अब हमने एनर्जी डेंसिटी को डिफाइन किया था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और उसका फॉर्मूला डिराइव किया था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इस केस में भी एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी इज हाफ Li नॉट स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड इज एरिया इनटू लेंथ, तो उससे डिवाइड कर देंगे, वो एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। उसमें फॉर्मूला आया था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसमें हमारा फॉर्मूला बनेगा बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। So you can read energy density. It is defined as energy per unit volume. It is defined as energy per unit volume in magnetic field. It is defined as energy per unit volume in magnetic field. For solenoid of length L and cross sectional area A, volume is AL, एनर्जी क्या थी? हाफ Li स्क्वायर, तो हाफ Li स्क्वायर डिवाइडेड बाय AL क्या आएगा? एल कैंसिल नहीं करना, मेरे को पता था करोगे। एक एल सेल्फ इंडक्टेंस है, एक एल लेंथ है, मतलब एरिया इनटू लेंथ में स्मॉल एल लिखना था कि गलती ना हो जाए। कैपिटल एल इज सेल्फ इंडक्टेंस, स्मॉल एल इज लेंथ, तो एनर्जी डेंसिटी वुड बी सो लेंथ को स्मॉल एल लिख लो, हाफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है सोलेनॉइड की? अभी फॉर्मूला डिराइव किया, ए कैंसिल, तो क्या बना फॉर्मूला? हाफ इसको ऐसे लिख दो, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई और म्यू नॉट से डिवाइड कर दिया। दिस कैन बी रिटन एज और मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट Li, तो हमारे पास क्या बन गया है? मतलब
you can read in numerical. A short bar magnet. A short bar magnet of magnetic moment M1 is placed near a coil of radius A such that the coil and magnet are coaxial. If the magnet moves the coil exerts a force which opposes its motion. Because पास आएगी तो पास नहीं आने देना, दूर जाएगी तो दूर नहीं जाने देना. When a magnet moves, coil opposes its motion with a force F. How will the force vary with distance between the two? How will the force vary with the distance between the two? एक एक स्टेप करके चलते हैं. You can say हमारे पास ऐसे डायग्राम है. Say magnet और एक coil of radius A. इनके सेंटर्स में डिस्टेंस लगेगी x. अगर मैं आपसे सबसे पहले पूछूं फ्लक्स, इसको सेकेंडरी मान लो. इसका अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड है कॉइल का. It's placed in magnetic field of bar magnet. तो फ्लक्स कितना होगा? मैग्नेट को अगर मैं प्राइमरी मानूं, magnetic field of magnet into area of the coil. Magnet का magnetic field on the axis. एक्सियल लाइन पे यही फॉर्मूला था 2m by r क्यूब. इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2p by r क्यूब, इसमें 2m by r क्यूब. फर्स्ट डे की याद है मैग्नेटिज्म में. एक्सिस पे फॉर्मूला था ये. ठीक है. यहाँ पे फैराडेज लॉ क्या है? EMF इंड्यूस्ड इज d/dt. इसमें क्या वेरी कर रहा है? x. EMF induced in secondary coil is क्या है? डिफरेंशिएशन. ये सब तो कांस्टेंट है. वन बाई एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन माइनस 3/x⁴ इंटू dx/dt. बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू x नहीं कर रहे ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं.
यही है, dx by dt को v लिख दिया। अच्छा, करंट कितनी हो जाएगी? EMF अपॉन रेजिस्टेंस। सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो करेगी तो इट एक्ट्स एज डाइपोल। डाइपोल है तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगी, और मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी होगी? करंट इनटू एरिया। करंट कितनी फ्लो कर रही है? आर भी है इनटू एरिया, पाई स्क्वायर। Force between two dipoles, in M2 is ये कहां से आया? फोर्स निकालने का सबसे जनरल मेथड क्या होता है? वो तो एक्सेलरेशन पता हो तो निकाल लोगे ना फिजिकल वेब में। अच्छा, इसकी अगर ग्राउंड से हाइट x है और ग्राउंड को मैंने मान लिया रेफरेंस, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgx। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव? तो फोर्स इज माइनस du by dx। mgx की डिफरेंशिएशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू x? तो f इज माइनस du by dx, मतलब माइनस mg। वही फोर्स लग रही थी इस पे। पोटेंशियल एनर्जी पता हो तो उसको डिस्टेंस के साथ डिफरेंशिएट करके फोर्स आ जाती है। एक डाइपोल दूसरे डाइपोल के एक्सिस पे बढ़ा तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या था? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। माइनस पी डॉट ई। याद है, पढ़ा था कभी? टेंटेटिव अराउंड 4-5 अप्रैल को पढ़ा होगा। तो भी 2 महीने हुए हैं सिर्फ। माइनस पी डॉट ई, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। कुछ भी नहीं आ गया तुम्हारे को तो।
इसके डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू आर? डी यू बाई डी आर कितना होगा? डी यू बाई डी आर 6p1p2 upon r4 into 1/4 तो वही फॉर्मूला तो लगाया मैंने वहां भी। 1/4 की जगह म्यू नॉट बाई 4 पाई, p1p2 की जगह m1 m2 और डिस्टेंस रेज़ टू पावर 4 की जगह डिस्टेंस रेज़ टू पावर 4। जो आईआईटी का पेपर बनाते हैं ना, मेरे हिसाब से उनको एक बार एक्चुअल में आके 12th क्लास पढ़ानी चाहिए। मेरे को लगता नहीं उनको कुछ आइडिया है कि 12th के बच्चों का क्या लेवल होता है, वो कितनी चीजें समझ लेते हैं, कितनी चीजें रिटेन कर पाते हैं। वो एज्यूम करके करते हैं कि बच्चों को जो एक बार पढ़ा दिया उनको जिंदगी भर के लिए याद हो गया। उनको जो कंसेप्ट एक बार समझा दिया, पक्का कंसेप्ट उनके दिमाग में क्लियर है, सारी उम्र भूलेंगे नहीं, कुछ भी पूछे हम पूछ लेंगे। एक्चुअल में मैंने ऑब्जर्व किया कि वो जैसा पेपर बनाते हैं जेईई एडवांस का, वो तभी कोई बच्चा क्लियर कर सकता है अगर मतलब सब कुछ 1-2 साल के लिए छोड़ के लगा रहे बस पढ़ने में, बार बार रिवाइज करे, बस सारा दिन और कुछ नहीं करता, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही पढ़ता। बाद में तो सब झूठ बोल देते हैं कुछ भी। जैसे आईआईटी में जो इस साल फर्स्ट है वो क्या बोल रहा है, मैंने दिवाली के बाद तैयारी शुरू की थी, मतलब बाकी इंडिया पागल है, तेरे पास इतना खास दिमाग है, तो दिवाली के बाद तैयारी शुरू करके आईआईटी में फर्स्ट आ गया। 2 इंटरव्यू है, एक में कह रहा है मैं 9th से पढ़ रहा था कि मैंने 9th में आईआईटी की तैयारी शुरू कर ली थी, और दूसरे में कह रहा है मैं दिवाली के बाद पढ़ना शुरू हुआ था। और 9th की दिवाली के बाद पढ़ना शुरू किया होगा, मतलब कुछ ने ऑनेस्टली भी बताया। एक मैं मुझे उसका 10th या 11th रैंक है, वो कह रहा था मैंने तो 7th में शुरू कर ली थी कि मैं पहले ओलंपियाड देता था, सारे 10th के जूनियर ओलंपियाड जो होते थे उसमें मेरे मेडल आए थे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में। तो फिर मेरे को मोटिवेशन मिली कि मैं ओलंपियाड में मेडल ले सकता हूँ तो मैं आईआईटी भी कर सकता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ 5% बच्चे जो आईआईटी क्लियर करते हैं या एम्स में जाते हैं, 5% बच्चे होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग वाले, जिनको आप कह लो गॉड्स गिफ्ट है, कुछ भी उनके पास एक्स्ट्रा टैलेंट है, वो चीजें नहीं भूलते हैं, उनको बहुत जल्दी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है, ऐसे बच्चे होते हैं हमेशा। तो जो सिलेक्ट होते हैं 5% उनमें से ऐसे ही होते हैं, 95% कंसिस्टेंट हार्डवर्क से क्लियर करते हैं। जो एवरेज बच्चे हैं, कोई खास मतलब टैलेंट नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं चलता, तो उन्होंने मेहनत इतनी की कि वो क्लियर कर लिया। तो नॉर्मली आप ये मान के चलो क्लियर होने का मैक्सिमम चांस हार्डवर्क से है, कंसिस्टेंटली पढ़ो। बिकॉज अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा जितने लोग आईआईटी की तैयारी करोगे सबकी हो जाएगा, एम्स क्लियर हो जाएगा, बट अगर आप कंसिस्टेंट मेहनत करते हो अब से लेके से जनवरी तक भी, मेंस की अगर हम डेट में, तो नॉन मेडिकल वाले अब से जनवरी तक करोगे, आईआईटी हो ना हो आपको एनआईटी अच्छा जरूर मिल जाएगा, ये गारंटी है कि अगर आईआईटी में नहीं गई तो एनआईटी की कोई ना कोई अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। क्योंकि आईआईटी की गारंटी हम लेते नहीं, मतलब आप ये मान के चलो 17 लाख में से 5,000 बच्चों को ही मिल रही है, और सिंसियर मेहनत करने वाले लगभग 40-50 हजार बच्चे होते हैं इंडिया में जिन्होंने एक्चुअल में मेहनत की। तो जो एक्चुअल में मेहनत कर रहे हैं उनमें से भी 10 में से 1 ही सिलेक्ट होगा आईआईटी की अच्छी सीट के लिए। बट ये है कि वो जो 50,000 है वो कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेज में एडजस्ट हो जाएंगे, चाहे वो ट्रिपल आईटीज में चले जाएं, चाहे वो धीरू भाई अंबानी जैसे कॉलेज में पहुंच जाएं, बहुत सारे प्राइवेट भी अच्छे हैं, बिट्स अच्छा है, कलिंगा इंस्टीट्यूट अच्छा है, मतलब बट आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो। सिमिलरली मेडिकल को कहते हैं कि एम्स डेली मानते हैं हम मुश्किल है, बहुत कम सीट्स हैं, टॉप 50-60 में रैंक चाहिए तो ही एम्स डेली मिलता है। तो एम्स अगर हम सिर्फ एम्स की बात करें तो वो 3000 रैंक तक मिल जाएगा, और वो अच्छे हैं, एम्स पटना, एम्स ऋषिकेश अच्छे कॉलेज है, ये 3000 तक मिल जाते हैं। ये भी ना हुए फिर भी जीएमसी जिनको हम बोलते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, वो अराउंड 50,000 बच्चों को मिल जाता है। तो आपको बेसिकली पहले 50,000 में आना, ये इतना टफ टारगेट नहीं है।
टफ होता है अगर मैं बोलूँ टॉप 10 में आना है इंडिया में, वो मुश्किल है। टॉप 50,000 का एफर्ट तो आप कर सकते हो कि हम टॉप 50,000 बच्चों में हैं, तो आपको कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छी ब्रांच मिल जाएगी, उसके बाद फिर लाइफ सेटल है, फिर क्या पंगा। बिकॉज आप जितने अच्छे कॉलेज में जाओगे स्टार्ट उतनी अच्छी मिल जाएगी, अल्टीमेटली तो फिर आपकी मेहनत है, आप जॉब पे जाके क्या करते हो। मेडिकल वालों का थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, ये पहले एमबीबीएस करेंगे, वो भी पता नहीं गवर्नमेंट ग्रेजुएशन 6.5 साल की कर देनी है 5 की जगह। फिर उसके बाद 2 साल की रूरल एरिया सर्विस भी कंपलसरी करने की कोशिश कर रहे हैं कि एमडी में एडमिशन से पहले 2 साल गांव में नौकरी करो, करो या ना करो एटलीस्ट सर्टिफिकेट चाहिए 2 साल नौकरी की है। फिर उसके बाद 2 साल की एमडी, और आजकल एमडी पे कोई डॉक्टर रुकता नहीं है, वो एमसीएच या डीएम या कुछ और आगे करते हैं। तो आप तो अभी 18 साल के हो, मान के चलना कि 30 साल तक पढ़ रहे हो अभी। हाँ, नॉन मेडिकल वाले 30 साल तक पढ़ते हैं। अगर आपको अपने पुराने स्टूडेंट से एग्जांपल दूं तो मेडिकल वाले तो भी पढ़ रहे हैं, और नॉन मेडिकल वालों की तो शादी नहीं होनी चाहिए उनके बैच के, बिकॉज उनको उनके 21-22 साल में नौकरी लग जाती है, 5-6 साल नौकरी करते हैं, फिर पेरेंट्स पीछे पड़ जाते हैं, फिर शादी करनी है। मेडिकल वालों को कैसे बोलने, वो तो बोलेगा मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ, और फिर जब नौकरी लगेगी तो मेडिकल वालों को फिर सैलरी कम मिलेगी नॉन मेडिकल वालों से। हाँ, सबसे कम सैलरीज मिलती है डॉक्टर्स को। क्या अब बाद में तो इनकी अपनी मेहनत है, अच्छी प्रैक्टिस चलाने, लूटने पूरे जलंधर शहर को जितने मर्जी भी, तो मतलब पैसे नहीं। बाद में तो जलंधर में ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो रोज के 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं। इंजीनियर के लिए कभी सोच नहीं सकता अनलेस आप बहुत अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच जाओ तो। सेकेंड राइट, समझ में आया सारा कैसे किया। आप डेरिवेशन अगर भूल भी जाओ ना, ये 2 चीजें याद रखना बस, एक ये फॉर्मूला और एक ये प्रोपोर्शनैलिटी। ये इतना बड़ा फॉर्मूला तो याद होगा नहीं, तो प्रोपोर्शनैलिटी याद रखो बस। उन्होंने प्रोपोर्शनैलिटी पे क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट राइट, two inductors L1 and L2 are connected in parallel. Two inductors L1 and L2 are connected in parallel and current I flows through them. Find the current distribution in the two coils. करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन 2 कॉइल्स मतलब यहां से करंट I1, सॉरी इसमें I1 और इसमें I2। तो हमने I1 और I2 की वैल्यू बतानी है। हमने सेम क्वेश्चन याद है रजिस्टर में भी किया था, क्या टोटल करंट I फ्लो कर रही है, R1 में से कितनी फ्लो करेगी और R2 में से कितनी करेगी। फॉर्मूला क्या था, अगर टोटल करंट I है, R1 R2 पैरेलल में है, तो R1 में करंट IR2 upon R1 plus R2, और R2 में निकालनी है तो IR1 upon R1 plus R2। तो इसमें भी हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है। If di1 by dt represents rate of change of current
तो इसकी रेशियो क्या होगी? हमारे पास ये फॉर्मूला मैग्नीट्यूड का, तो डी आई बाई डी टी ई बाई एल, पैरेलल में ई एम एफ सेम होगी, तो ई बाई एल वन अपॉन ई बाई एल टू, तो इसलिए एल टू बाई एल वन आ जाएगा। इम्प्लाइज जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ज्यादा है उसमें फाइनल करंट भी उतनी ज्यादा ही होगी। बेसिकली फाइनल करंट क्या होगी? अगर मैं पूछूं आपसे 10 सेकेंड के बाद कितनी करंट है, तो इससे जितनी करंट 1 सेकेंड में बढ़ी मल्टीप्लाई बाय 10, 1 सेकेंड में कितनी बढ़ी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, तो करंट कितनी हो जाएगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इनटू टाइम, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की रेशियो है वही करंट की रेशियो भी आएगी। तो di1 by dt upon di2 by dt is L2 by L1, i1 by i2 is also L2 by L1। एक मेरे पास और कंसेप्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। यहां से करंट अगर I आ रही है तो I will be equals to I1 plus I2, I1 is क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो I2 कितना आ गया? सिमिलरली सेम फॉर्मूला आ रहा है, सिर्फ R1 R2 की जगह L1 L2 आ गया। रेजिस्टेंस का रूल होता है कि अपोजेस द करंट और उसमें एनर्जी लॉस होता है, इसमें एनर्जी लॉस नहीं ले रहे हम, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो गई है, तो ये भी एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है जैसे कैपेसिटर था, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसमें मैग्नेटिक एनर्जी है। और ये डीसी को अपोज भी नहीं करता, रेजिस्टेंस जो है वो डीसी को अपोज करती है, ये डीसी को अपोज नहीं करेगा बिकॉज डीसी में कांस्टेंट करंट है, कांस्टेंट करंट है तो डी आई बाई डी टी में भी जीरो, तो डी आई बाई डी टी जीरो होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो हो जाएगी जो अपोज करेगी। नोट में लिखो इसके नीचे एक पॉइंट, if two inductors having self-inductance, if two inductors having self-inductance L1 and L2, if two inductors having self-inductance L1 and L2 are connected in series, then if we neglect mutual induction between them, if we neglect mutual induction between them, then equivalent inductances L is equals to L1 plus L2, that's same resistor वाले फॉर्मूले, रेजिस्टर में भी इधर सीरीज में R1 plus R2, पैरेलल में 1 by R is 1 by R1 plus 1 by R2। Similarly, if L1 and L2 are in parallel, similarly L1 and L2 are in parallel,
The equivalent self-inductances. The equivalent self-inductances 1 by L is equal to 1 by L1 plus 1 by L2. यहाँ शॉर्टकट हम क्या लेते थे, अगर दो रेजिस्टर्स पैरेलल में है तो R1 R2 upon R1 plus R2, तो इसमें भी वही आएगी L1 L2 upon L1 plus L2. सेकेंड पॉइंट लिखो इसमें, as inductors opposes variation in current, as inductors opposes variation in current, therefore they are used in circuits to suppress high frequency noise. They are used in circuit to suppress high frequency noise. Inductors similarly, because ये variation को oppose करते हैं, तो they are also used in ECU of cars. जो इंजन कंट्रोल यूनिट होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, मतलब आपकी कार में आजकल सॉर्ट ऑफ एक CPU लगा होता है, उसका पर्पस क्या होता है? It has all kinds of sensors in it. मतलब आपकी कार के जितने भी हाईटेक फीचर है उसके लिए उसमें सेंसर लगे हैं, तो उधर इंडक्टर की जरूरत पड़ती है, बिकॉज हाई फ्रीक्वेंसी AC कैन डैमेज दोस, ये सेंसर्स डैमेज हो जाते हैं। सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस की एडवांटेज ये है, ये शॉक प्रूफ होते हैं। शॉक प्रूफ होते हैं मतलब गिरने से खराब नहीं होते, बट दे आर द डिवाइसेस व्हिच कैन गेट डैमेज विद वोल्टेज फ्लक्चुएशन इजीली। ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन को बहुत ज़्यादा विथस्टैंड नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस रोबस्ट होती हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जैसे आपका पंखा ही इलेक्ट्रिकल है, अगर वोल्टेज कम या ज़्यादा होगी, अब देखो एक कम है तो ये आवाज़ करेगा, अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालेगा फैन, तो ये चलता रहेगा, ये खराब नहीं होगा। वैसे अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कोई और लो वोल्टेज सप्लाई दे दी, तो उसका जो मदरबोर्ड है वो खराब हो सकता है। सो उसकी डिसएडवांटेज होती है कि इट कैन नॉट हैंडल द वेरिएशन। इसीलिए नॉर्मली जो आपका लैपटॉप का अडेप्टर है उसके दो रोल होते हैं। एक रोल तो है कि उसमें मतलब पावर ऑन करना है चार्ज करने के लिए, बट इट हैज इनबिल्ट सर्किट सो दैट अगर कभी वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है एकदम से तो आपका अडेप्टर खराब होगा, लैपटॉप खराब नहीं होगा। मतलब अगर डैमेज हुए तो उसके पार्ट डैमेज होंगे। या जैसे आपका मोबाइल का भी चार्जर है, उसको आप नॉन साइन वेव इन्वर्टर पे यूज कर रहे हो, मतलब गवर्नमेंट की सप्लाई तो साइन वेव है, आपके घर में जो इन्वर्टर लगा था वो ट्रेपसॉइडल है। अगर ट्रेपसॉइडल है तो अगर ट्रेपसॉइडल इन्वर्टर है और आपने मोबाइल फोन को चार्ज किया, तो अगर वो अडेप्टर आपका नहीं लगा होगा तो आपका फोन खराब हो सकता है। अभी ये होगा कि आपने अगर चार्ज कर भी दिया तो ज्यादा से ज्यादा अडेप्टर खराब हो जाएगा, फोन फिर भी सेफ रहेगा बिकॉज वो सर्किट ब्रेक कर देगा, तो आपके फोन को डैमेज नहीं होने देगा। नॉर्मली हम लेते हैं कि जो ओरिजिनल चार्जर्स हैं वो नॉर्मली दोनों वोल्टेज को इजीली हैंडल कर लेते हैं, ट्रेपसॉइडल को भी और साइन वेव को भी। जो आफ्टर मार्केट आप कभी लेके आते हो वो 100-150 रुपए वाले चार्जर, उसमें ट्रेपसॉइडल हैंडल नहीं होती, वो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे आपके, अगर आपने इन्वर्टर पे यूज किया तो। या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें बीच में इनबिल्ट सर्किट नहीं है, इनबिल्ट सर्किट प्रोटेक्शन नहीं है, जैसे टीवी, एलईडीज, आपकी एलईडीज में आपने बीच में कोई सर्किट नहीं लगाया, सीधा प्लग ऑन किया हुआ है, बीच में कोई अडेप्टर नहीं है, कुछ नहीं है, तो अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुई तो आपका टीवी का मदरबोर्ड खराब होगा। एंड आपके टीवी की जो कॉस्ट है उसकी 70% से मदरबोर्ड की कॉस्ट ही होती है, तो मतलब वो खराब हो गया, मतलब फैन तो अपने ही ले लो, वो किसी काम का रहता नहीं है। और सबसे ज्यादा खराब कब होते हैं?
बारिश में ना हम जलंधर वाले लोग बहुत करीब करते हैं कि थोड़ी सी हवा चलती है लाइट बंद कर देते हैं। अगर नहीं करें तो आपके टीवी खराब होंगे घर में। आप में से मेजॉरिटी लोग टीवी का प्लग नहीं निकालते, रिमोट से स्विच ऑफ करते हो और पीछे से वो ऑन ही रहता है हमेशा। हवा चलती है जब, तो 3 फेज कनेक्शंस मिले हुए हैं, मतलब 4 वायर्स होती हैं बाहर खंभों के बीच में। अगर वो 2 वायर्स जुड़ जाती हैं हवा चलने से, जो नहीं जुड़नी चाहिए पर जुड़ जाती हैं यहाँ पे, जब वो 2 वायर जुड़ जाएंगे तो आपके घर में 440 वोल्ट की सप्लाई आ जाएगी। तो 440 वोल्ट की सप्लाई आएगी तो जितनी भी ऐसे डिवाइसेस हैं वो सब खराब हो जाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेती, और जैसे उनको लगता है हवा चली लाइट बंद कर दो, तो बस फिर उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर भी आपने खराब किया तो फिर आपके ऊपर है। बिकॉज फेजेस को अलग कैसे करते हैं, यूजिंग सेपरेटर्स। सेपरेटर्स एक अलग से डिवाइस होती है, इंसुलेटिंग डिवाइस है। इंसुलेटिंग डिवाइस के साथ 2 वायर्स के बीच में लगा देते ताकि हवा चले तो वो जुड़े ना। तो यहाँ पे पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वो सेपरेटर्स हैं नहीं ठीक, तो हवा चलने से कई बार वो वायर्स दोनों जुड़ जाते हैं आपस में फेस, तो वोल्टेज डबल हो जाएगी उससे, तो इसलिए खराब होती हैं डिवाइसेस। एक मेरे से क्वेश्चन किसी ने पूछा था, मेरे को किसी ने वीडियो दिखाया, किसी स्टूडेंट ने, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को धो रहे थे, मिट्टी पड़ी हुई थी, सर्किट ऑन है एंड उसको अच्छे से, मतलब पाइप लगी हुई है, उसको वॉश कर रहे हैं। तो उसने मेरे को पूछा है कैसे पॉसिबल है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सो वो शॉर्ट सर्किट नहीं होता, इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ लिक्विड जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड वॉशर। मतलब वो डाइलेक्ट्रिक है, वो लिक्विड इंसुलेटर है, तो उससे साफ तो हो जाएगा पर 2 पार्ट्स में इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट नहीं बनेगा, पानी से वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इसलिए वो अलग लिक्विड आता है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को धोने के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को धोना है तो उसे डाइलेक्ट्रिक लिक्विड से धोता है ताकि वो साफ भी हो जाए और आपका सर्किट भी खराब ना हो। कल करते हैं इसके आगे, कल एक अलग टॉपिक करेंगे एलसी ऑसिलेटर, मतलब ट्रांजिएंट करंट। कुछ पार्ट सिलेबस में है, कुछ बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। 4 साल पहले इन्होंने बोर्ड के सिलेबस से डिलीट किया था ट्रांजिएंट करंट, एंट्रेंस से भी और बोर्ड से भी, और पिछले 4 साल से हर साल क्वेश्चन दे रहे हैं उस पर। तो हाँ, एंट्रेंस में हर साल। अब सीबीएसई का हाल देख लो, एनटीए ने पिछले साल नीट के सिलेबस में एक चेंज किया, बस कार्नोट हीट इंजन सिलेबस से हटा दिया, और इस साल कार्नोट हीट इंजन का ही क्वेश्चन दिया। मतलब हटाए किस लिए था, अगर आपने फिर क्वेश्चन उसी का ही पूछना है तो पूरा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है, कुछ नहीं हटाया, कार्नोट हीट इंजन हटा के उसका क्वेश्चन पूछा। तो इसलिए आप भरोसा नहीं कर सकते इस पे, मतलब सब पढ़ लो जो आता है।